ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये 6 किए थे। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। ये 6 सबसे ट्रिकी वाले थे। जो आगे आने वाले हैं दे आर लेस ट्रिकियर। उनके अंदर एक काइंड ऑफ छोटी सी लॉजिक मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे आपको शायद उनको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। ये 6 आपको करने पड़ेंगे। सो हमारे पास मैस्कुलिन है और फिर यहाँ पे हमारे पास फेमिनिन है। ठीक है। अब हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। नेक्स्ट प्रोनाउन इज अंता। उप्स, सॉरी, अंता। अंता। अंता इज सिंपल। आपको बेसिकली आप समझ ले कि अलिफ और नून जो है ना, ये हमजा और नून, इसको स्किप कर देना है। यू हैव टू स्किप दिस पार्ट, ओके, एंड यू हैव टू कीप द रिमेनिंग वन एंड यू पुट इट इन द एंड ऑफ द फेल। यहां तक सुकून नसर, and then put the ending of the pronoun, which is ta. You see that? Sukoon and the ending of the pronoun. ये logic है basically. ठीक है? Anta nasarta. Anta nasarta. That would mean you helped. Logic समझ आई है? Anta is the pronoun. You just skip hamza and noon and you take the ta, put the sukoon on the last letter and put the ta in the end. Let's try this. I have antuma. ठीक है? What I'm going to do is I will write the fail nasar like that up to this point, sukoon. And now I want to make an ending. The logic says remove the hamza and noon and put everything as it is. So what should it be? Tuma. Nasar tuma. Okay. It means you both helped. Who can produce antum? Nasartum. Nasartum. Correct. Antum nasartum. ठीक हो गया? Antum nasartum. What about anti? Nasarti. Nasarti. Antuma? Same. Antuma is same. I'll just copy and paste. Antuma nasartuma. Antunna. Nasartunna. Very nice. Antunna nasartunna. ठीक हो गया? These 6 are easy. The first 6 are tricky ones. ठीक है? उनको थोड़ा, उनके पास, उनमें लॉजिक कम है, तो you have to really put an effort to remember them. ठीक है? तो ये सब मैं इनकी endings highlight कर रहा हूँ. You're looking at the sukoon and the ending. Sukoon and ta, sukoon and tuma, sukoon and tum. Sukoon and ti, sukoon and tuma, sukoon and tunna. That's what you're looking at. अच्छा जी, ये बन जाएगा you all helped. This is anti nasarti is you helped. Antuma nasartuma is you both helped, but feminine of course in this case. Antunna nasartunna is you all helped, again feminine in this case. ठीक है? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना. अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना. ठीक है? So give it 30 seconds, 1 minute. See if you can produce it with your own mind. These 6. If you can produce this with your own mind, then we'll do a little bit of a practice. इसके बाद सिर्फ 2 रह गए and then we can jump on to the more advanced things. ठीक है? Give it 30 seconds, please.
ونصر هما نصر هي نصر أنت चलें. Anyone wants to give it a shot? Yeah. जी, try it. هو نصر هما نصر هم نصروا هي نصرت هي نصرت. هم هي نصرت هم نصرت هم نصرتا هن نصرنا. Very nice. आगे अंत हमने आपने कहा था वो ता बस लेना है तो जी. नसरता जी. अंत अंतुम नसरतुम नसरतुमा. नस्तुमा. नसरतुमा अंतुम नसरतुम. Very nice. Very nice. इसका जो अंती. अंती नसरती नसरतुमा नसरतुहुन्ना. Very nice. Very nice. Waqas bhai. Very nice. जी, anyone else want to try it? I'll try it. हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू. हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना. Now the logic kicks in. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antum nasartum. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartunna. तुम. जी. I can go. जी. क्या था? हुआ नसरा, हुमा नसरता, नहीं, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, और क्या था? हुन्ना. हुन्ना नसरना. Correct. फिर आगे आ जाता है अंता is नसरता, अंतुमा is नसरतुमा, और फिर अंतुम is नसरतुम, फिर अंती is नसरती, अंतुमा is नसरतुमा, और अंती अंतुमा अंतुन्ना is नसरतुन्ना. Very सॉरी nice. यार, वो जो मेलोडी है ना, वो उसके अलावा नहीं आता सर में. तो मेलोडी तो आपको बनाने के लिए रखा हुआ है ना. So you will make that melody. Huh? So that's your next assignment. आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा. I mean, this is at this point, this is exactly what I expect, जो कि आप लोग कर रहे हैं. तो I'll give you a pronoun. You give me what is the fail. नसरा को यूज करेंगे हम लोग. ठीक है. I am talking about let's say हुआ. नसरता, नसरा, नसरा. हुआ नसरा. Say हिया. नसरता नसरता हिया नसरता. ठीक है. हुम नसरू, नसरू. हुन्ना नसरू नसरना नसरना. नसरना. Very nice. अंतुम नसरतुम नसरतुम, नसरतुम. अंतुन्ना नसरतुन्ना, नसरतुन्ना. Very nice. अंती नसरती, नसरतुम नसरती. हुमा नसरतुमा नसरा नसरा, नसरा और नसरता. और नसरता. राइट. तला देखिए भाई हुमा वाली को बोल करेक्ट दिया किया करो, तो भी तला किसने भाई किया?
सर, एक बस ये कहते तला भाई आप वाली सिर्फ हुमा या check- नॉर्मल हुमा? हाँ, बस देखा check कैसे करें। गलती निकालता हूँ, बस गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए इस यानी नाम पे। हुमा पे सबने गलत कहा कि एक बंदे ने सही कहा, ठीक है। Oh my God, how बस much evidence, man? दिल पे लिखा हुआ है। Recorded evidence. अच्छा चले, अंतुम, नसरतुम, हिया, नसरत, 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 सॉरी। okay. Let's do अंतुमा, नसरतुमा, 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 ठीक है। तो let's do it as a right. Let's see. हुआ, नसरा, हुमा, नसरा, तुम, नसरु, नसरू, ठीक है। हिया, हुमा, नसर, हुन्ना, नसरता, नसर, ता, जी, नसरतु, सॉरी, हिया is नसरत, हुमा नसरत, is nasarata, yeah, nasartani. Sukoon does not come with ta in the first six as such, ठीक है। वो आता है सेकंड सिक्स बैच के अंदर, ठीक है। इट्स नसराता, रा के ऊपर भी फतहा है, ये देखें, ठीक है। रा के ऊपर फतहा है यहाँ पे, ठीक है? इधर भी रा के ऊपर फतहा है, ठीक है। सो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसराता, नसरना, ये 6 कर सकते हैं कोई? करें, लेट्स डू इट। हुमा, जी चलें, करें सोहेब, हुआ लेट्स डू इट। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंत अब नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये तो इजी होना चाहिए। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम। वेरी नाइस। अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अंति नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 रह गए, इसके बाद आपका ये कंप्लीट है इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन वाज अना। अना एग्जैक्टली 6 की तरह होता है ये, अना नसर। आप देख ले, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने ता विद फतहा यूज कर लिया, so that's out of the options. This option doesn't remain anymore. यहाँ आपने ता को कसरा के साथ यूज कर लिया, that option is out of the window as well. It's being used. What is remaining? ईश, नसरतु, Nasartu, ana nasartu. Okay, so if you know anta and anti, you can deduce ana. Ana nasartu, nasartu, I helped, I helped, nasartu. Khalaqtu, I created. Dakhaltu, I entered. Okay, so that's all nasartu, ana pronoun. Okay, so this of course goes for masculine and feminine, just like before. Okay, then you have nahnu. Nahnu is very simple. What is the attached pronoun of nahnu? Na, Na, you just add it there. You just add that there. Attached pronoun of nahnu. And that's nahnu nasarna. Now the difference between isko dekhein, nasarna, hunna nasarna,
and nahnu nasarna. Difference is the stretch. This is hunna nasarna. This is nahnu nasarna. There is a stretch. Okay, and that will change a lot. So if you don't say a stretch, then you are actually changing the pronoun to feminine and third person. Okay, while this is first person. Nahnu nasarna. Ana nasartu, nahnu nasarna. This would mean I helped, and this would mean we helped. Okay. Let's go to your book, your notes. So ये सारा चार्ट आपके पास यहाँ पे पेज नंबर 33 पे है, ठीक है? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना. Everything is here, ठीक है? इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको जरा करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए आइडेंटिफाई करने में. Let's see which fi'il is which. Regardless of what it means, what we need to identify is which pronoun is hidden inside this one. Okay, so let's go one by one. Who wants to take the first turn? Antum. Chale. Kultum is antum. Nasartum. Antum. Antum. Very nice. Antum. Number 2. इस तरह vertically चल लेते हैं, चले. Nafaqu. Hum. नसरू Huma. हुमा Hum. Sorry. Hum. 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 This is hum. Very nice. Tawallaytum. Antum. 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 Very nice. Ushribu. Nasaru. Hum. Hum. Very nice. Akrartum. Antum. 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 Very nice. Very nice. Very. Khalat. Hiya. हुआ या Yeah. Nasarat. Right? Nasarat. Kasabtum. Antum. Antum. Okay. Ittaba'u. Hum. 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 Nasaru. Okay. Hum. Ittakhastu. Yeah. अना Nahi. Ana. 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 Ittakhaza means it means to take. Ittakhastu. What would it mean? I take. I took I took. Took. I took. Past. Past tense. I took. Ittakhastu. ठीक है? Okay जी. Tatahharna. Nahnu. Nahnu. Very nice. Very nice. Sorry for the past tense. कैसे हो? ये तो वो नहीं है हुन्ना. Oh sorry. Nahnu बोला है तला. नहीं Nahnu is wrong तला. हुन्ना है. बिल्कुल. Sorry, hunna. 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 भाई तला भाई पे इतना यकीन ना किया करें सर सवाए हुमा के ऊपर सही बात है यार मैंने लेसन लर्न कर लिया है यार. देखो उस वक्त यार- ना जैसी वकास भाई ने गुस्ताखी की ना हुमा पे मैंने फौरन टोक दिया था. अच्छा उमर भाई योर क्वेश्चन हाउ इज इट अ पास्ट टेंस? उमर भाई जो भी हम कर रहे हैं ना इट्स ऑल पास्ट टेंस. ठीक है, जो आपने अभी पूरा चार्ट किया है ये वाला पीछे, दिस इज ऑल पास्ट टेंस. जी जी ठीक है. ठीक है, नथिंग इज प्रेजेंट टेंस इन दिस एक्सरसाइज येट. तो ये क्योंकि मैप करता है नसर तू पे, दैट्स व्हाई इट्स अ पास्ट टेंस. ओके ठीक है जी. बलगना. तअल्लमू. लुमतुन्ना. अंतुन्ना. वेरी नाइस. काला. हुमा नसरा काला इज हुमा. नसरा. काला मीन्स एक होता है काला मीन्स he said. This is काला. It's extended. It means they both said. Okay. इसी से कमांड निकलती है जिसको आप कहते हैं कुल. कुल हु अल्लाहु अहद से. ठीक है ना, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे.
Very nice. Let's do this practice completely because I don't mind अगर हम पूरी class सिर्फ ये practice ही करें. ठीक है. अर्दाता अर्दात. नसरत नसरत ठीक है. What's the pronoun? That's what I'm after. Yeah. Here. here جعلنا. हुमा नसरत हुमा female Think again. नहीं अना नहीं अना नो अस नानु 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 نحن نحن خلقنا. नहनु نحن. خلق means he created. خلقنا means we created we created. Ja'ala means he made. Ja'alna means we made. ठीक. अच्छा जी. अब ये देखें जी. इhtazat रब्बत अनबतत. हिया हिया तीनों ही है तीनों ही Here. है All is here. ठीक है. खसीरा. नसरा हुआ हुआ. Do I care about the middle harka? No. I'm looking at the ending one. Okay. आपने नसरा पढ़ा है और ये खसीरा है, but it still maps the raw. Okay. हक्का. here हुआ हुआ. इख्तसमू. हुमा Think again. नसरू sorry hum Hum. अरादू. hum Hum. Very nice. खर्रा. हुमा हुआ नहीं सॉरी हुआ हुआ. कुंतुम. अंतुम अंतुम अंतुम. फखात. फखानता. नसरता हुमा हुमा हुमा. चला यार बोल दो, कोई बात नहीं. तलावे का मूड खराब हो गया. मैंने इतनी देर पहले बाद तेरे आई से बड़ी देर इतनी बोलना देर था फिर बाद बाद आई में इतनी देर बाद 22वें नंबर पे आई जाके. तलावे का चलो मूड खराब है. ये वाला तला बताएगा. तला दावतु. नसर दाउतु तू सॉरी. ये दाउतु. अना अना. ठीक है. रवत्तु. अना अना. ठीक है. इत्तकीतुन्ना. अंतुन्ना अंतुन्ना. ये यू वाले काफी इजी हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं. हाँ वो फर्स्ट सिक्स जो है ना, फर्स्ट सिक्स थोड़े से ट्रिकी है. थर्ड पर्सन में है, थर्ड और जी. फर्स्ट पर्सन वो मिक्स हो रहे हैं. जी जी जी. वंस यू आर डन विद द फर्स्ट सिक्स, दूसरे वाले इतने मुश्किल नहीं है. ठीक है. तो दैट्स द प्रोनाउन, दैट्स द फेल चार्ट फॉर पास्ट टेंस. ठीक है. this has to come on your fingertips to be able to inshallah decode more and more. फहद मेरा क्वेश्चन है, अब जिस तरह ये हुम नसरू है, ठीक है, जी अब वाव के ऊपर जो है इज जज़म, ठीक है, जी. तो अमूमन जिस तरह कोई अगर वर्ड आ जाए जिसमें लास्ट के ऊपर जज़म आ जाए, यानी लाजमी नहीं है कि वाव के ऊपर ही हो जाए, लाजमी होगा कि वाव के ऊपर ही जज़म हो, तो वो मैं फेल्स की एंडिंग चेंज नहीं होगी. अच्छा ओके. ठीक है. so they will also always, past tense fails will always look like this. ठीक है. so and that's how ये जो एंडिंग है इनकी, ये आपको बेसिकली इनसाइड डूअर बताती है प्रोनाउन, क्योंकि एवरी फेल हैज अ डूअर. अच्छा फहद, तो फिर कल जो मैंने क्वेश्चन किया था इकरा है, तो फिर रा अलिफ जो है वो बन गया यहाँ पे, वो यहाँ नहीं कर सकते आप. अच्छा वो अभी नहीं कर सकते. इकरा is a different type of fail. It is a command that is driven from a present tense fails. ओके वो आपने नहीं किया अभी. अच्छा अच्छा छोड़. सही है. So shall we do some more practice on the Quran? Shall I Yes. just insert something and see how far we are? कोई भी any surah में भी, सूरह इसराइल कर लेते हैं चलें आज. ठीक है. Let's do first 20 ayahs. Let's see what we get.
ओके, अब इसमें मुझे थोड़ी हंटिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा फेल यार मैं आपसे। मेरे फॉन्ट चेंज हो सकता है, ये वाला फॉन्ट मुझे पढ़ना सॉरी मुश्किल लगता है। यार तलीम की कमी, मैं क्या कहूँ यार। सही बात है, वो रट्टू धोते हैं ना हम तो। I'll try to change the font. चलो, अच्छा जी सुभाना, जी। सुभाना, नहीं, let me pick up one. So आतीना, नसरना, नहनु, नाहनु, we granted, अता करना कहते हैं ना, we granted, ठीक है। ये जो है ना, ये नून अलिफ है, दिस इज नून अलिफ, सॉरी। जअलना, जअलना, नाहनु, नाहनु, तत्तखिजू, हम, हुम, हुम, वेरी नाइस। अमलना, नहनु, 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 वेरी नाइस। काना, हर्फ ऑफ नसर। हम, काना, चंद्र भाई, काना इज नॉट अ हर्फ ऑफ नसर। हुन्ना, नहीं हुन्ना नहीं होगा, हुन्ना, नसरना, हुआ, नो, दिस इज नसरा, ओके, दिस इज नसरा। तो आप मिडिल हरका से कंफ्यूज हो रहे हैं, दिस इज अ नसरा फॉर्म, ठीक है। नहीं इट्स अ इर्रेगुलर फेल जिसमें एक अलिफ आता है बीच में। आपको हुन्ना के अंदर भी आपको ऑफ कोर्स वो है, लेकिन आप याद रखें कि हुन्ना मैंने बताया आपको प्रीवियस लेटर पे एक्सप्लिसिट सुकून होता है, ठीक है, एंड देन कम्स द हुन्ना। यहाँ पे जब अलिफ यूज होता है ना अरबिक के अंदर, अलिफ कैन नेवर बी यूज एज अ रूट वर्ड, रूट लेटर। ये न्यू नॉलेज है आपके लिए, आपको नहीं पता। अलिफ इज बेसिकली, दिस इज एक्चुअली नॉट अलिफ हियर, दिस इज अ डिफरेंट लेटर हियर, जो कि हिडन है। अभी आपने ये वाली एडवांस फॉर्म नहीं पढ़ी भी, बट व्हेन यू सी काना, इट्स, मैंने ये पिक इसलिए किया, इट्स यूज्ड वेरी वाइडली इन द कुरान एंड इट्स अ नसरा फॉर्म, काना, ठीक है। तो व्हेनेवर यू सी काना लाइक दिस, देन इट्स अ नसरा फॉर्म, इसको ज़हन में रखना है आपने। जो इसकी हुन्ना फॉर्म है, दैट इज हुन्ना, दैट इज दिस फॉर्म। where is the Arabic keyboard? हुन्ना, दैट्स द नसरा फॉर्म, ठीक है। तो वो भी हमने नहीं की हुई। Kana will be huwa then. जी सॉरी, Kana will be huwa then. Who? काना इज हुआ, बिल्कुल, चले। करेंगे इंशाल्लाह ये सब चीजें आगे। कदईना, ना, नाहनु, नाहनु, वेरी नाइस। जा, वेरी कॉमन फेल। नसरा, हुम, हुआ, 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 इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, दैट्स द सेम फेल, ठीक है। जाअ, ही केम। बाअसना, नहनु, नाहनु, नहनु। जासू, हम, हुम, वेरी गुड। रददना, नहनु, नहनु, नाहनु। वेरी नाइस, you get the point, right? ठीक है। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज एग्जैक्टली दिस एक्सरसाइज। कुछ फेल्स हैं जो कि थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन आप हर चीज अभी नहीं कर सकेंगे। आपको अभी बेसिकली ये एंडिंग्स जहन में रखनी है जो हाईलाइटेड है यहाँ पे,
ठीक है, इनको फर्म अप करके ट्राई टू फाइंड दीज थिंग्स इन द कुरान, एंड वंस यू फाइंड देम एंड इफ यू आर अनश्योर शेयर इट एंड वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह ऑन द ग्रुप। मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा फहद, अब हम कैसे फ्रेगमेंटेशन करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्योंकि जिस तरह काना था वर्ड जी या जा है, तो इसको मैं ऐसा इस सब मुझे, क्योंकि अगर इसके मायने नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, जी तो मुझे लगेगा कि ये एक किस्म है, तो मैं इसको एज ए सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर करके ट्रीट कर दूंगा। जी। अब ठीक है, चले उसी तो मिसाल को हम ले लेते हैं। अगर ये इसम है, व्हाई इज इट नॉट एन इसम? ठीक है, सो इफ इट इज एन इसम, इट्स अ लाइट इसम, राइट? And light can be because of few reasons. One, it is a नेगेशन। mudaf. It is a mudaf. If it is a categorical negation, and maybe it's a partly flexible ism. सही। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर तो ये मुदाफ है, the next word should be mudaf ilayh, which is not. बिल्कुल ठीक है, मुदाफ मुदा, हाँ Right? ठीक है। It's not. ठीक है, is it a categorical negation scenario? नहीं कोई ला यूज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, नहीं। that doesn't apply. ठीक है, और मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। दिस वर्ड is a mostly 90% of the times come with a fail. Iza means when. ठीक है, Iza means when, and Iza is a special kind of zarf. It's a ism that pushes the meaning of past tense in the future. जो जाआ है, जाआ का मतलब होता है he came. But when it is used with Iza, it will say when he comes. तो फार इसीलिए मैंने इजा जो है, जिस तरह इजा एक ज़र्फ हो गया, जो हमने पढ़े थे, स्पेशल मुदाफ जी, जिसे कहते स्पेशल हैं, ठीक मुदाफ, है? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि जा जो है वो मुदाफ इलैह बन सकता है, लाइट विद नो अल फॉलोड बाय जर नहीं। यू आर गोइंग वेरी एडवांस्ड, बट आई एम नॉट गोइंग टू। ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इसका आंसर हम इंशाल्लाह अगले 1.5 साल के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं इसका आपको एक टीजर बता देता हूँ। व्हाट यू आर सेइंग, इजा इज अ स्पेशल मुदाफ, जा इज अ फेल, एंड दैट कैन एक्चुअली बी सेड एज अ मुदाफ इलैह ऑफ इजा। ठीक है, बट राइट नाउ डोंट नीड टू डाइव दैट डीप। नहीं, मेरा ये सवाल पूछने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मेरा सवाल जी। सिर्फ पूछना ये था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे ये कैसे पता चले कि ये इसम है या ये फेल है? वही थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इजा को तो मैंने बता दिया, ये फेल के साथ आता है। ठीक है, आपने जब इसको देखना है, आपने देखना है कि इफ इट इज लाइट, इफ यू थिंक इट इज लाइट, देन इट हैज टू हैव अ मुदाफ इलैह और इट हैज टू बी अ नेगेशन। अच्छा, ठीक है, ये दो चीजें। अगर तो आपको मुदाफ इलैह नहीं मिल रहा, यू कांट मार्क इट एज एन इसम। ठीक है, और स्पेशली व्हेन यू विल मेमोराइज एंड फर्म अप दिस चार्ट, दीस प्रॉब्लम्स विल गो अवे। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। तो आप ये कह रहे हो कि जहाँ भी जो हमने चार्ट में पढ़ा है वो सारे लाइट है, बेसिकली इसम लाइट फॉर्म में सारे, नसरता, नसरना, ये सारी लाइट फॉर्म है ना? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपने चार्ट में पढ़ा है, दिस इज योर टेम्पलेट। आई एम नॉट यूजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइट और हैवी। फेल्स के साथ वो टर्मिनोलॉजी अभी नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता। ठीक है, सो दिस इज द टेम्पलेट। व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द एंडिंग विद फतहा, एंडिंग विद रथ, एंडिंग विद ता, लाइक दिस। These endings you are monitoring. If you find something like this, you can confidently deduce that it's a fail. And if you have to say it's an ism, then it has to have a reason for being light. ठीक है, एंड वो रीजन या तो कैटेगोरिकल नेगेशन हो सकती है या वो मुदाफ हो सकता है। इस तरह की चीजें आपको नजर आनी चाहिए कहीं पे भी। मिसाल के तौर पे आप इसको कह सकते हैं, ये वाला जो है कदई नानी था, ये मिसाल के तौर पे, जस्ट लाइक मुस्लिमानी। If I say it's kadai nani, but if it is kadai nani, it has to be light then, right? It became kadai na, and if it becomes kadai na, it has to be categorical negation, or it has to have a mudaf ilay, right? Nothing of the sort is happening here. Okay, that gives you an idea that this is the fail, and it maps perfectly on your nasara chart. It's like nasarna. Okay,
So if it maps to your chart, so it will help you conclude that this is a fail. ठीक है, over time with practice ये चीजें clear होंगी इंशाल्लाह. साथ में ये क्वेश्चन था ये जी. फाइजा जा जो है जी. जा, इसमें हमें बताया कि इजा यूज होता है जब आप पास्ट को फ्यूचर में चेंज कर देता है वो. When ठीक है. जब होता है. हाँ, जी. लेकिन जो जा आ है वो हमारा स्टिल मैप होगा इसी पे नसरा पे. जी जी जी. यानी वो ओवरऑल मीनिंग चेंज करेगा, लेकिन अगर आप वैसे जी. वर्डली ट्रांसलेशन करोगे तो स्टिल पास्ट टेंस ही होगा. You will still say कि it's a past tense fail with हुआ ठीक है. as a doer. हम्म. लेकिन जब आप कंबाइन करके इसको ट्रांसलेट करेंगे, you will say when he comes. ठीक है. ठीक है. It pushes the meaning of past tense into the present tense or future. ठीक है. गुड हो गया. अच्छा, अब हमने जो चीज देखनी है, अब ये जो फेल्स होते हैं ना, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि he helped, he helped is nasara. That's what we have learned. What if I want to say, for example, Muhammad helped? अभी तक जो हमने doer पढ़े हैं वो pronouns हैं जो कि hidden है inside this fail. They are not exposed and you need to know the endings to detect them. ठीक है. Now I'm going to say Muhammad helped. अब इसकी simple 1-2 rules हैं जो कि बहुत super difficult नहीं है. So if I want to say Muhammad helped, what I would do is I can only use either the Hua version or Hiya version, right? Depending upon what gender the doer is. For example, if it is Muhammad helped, then I am going to use the Nasara. If it is Amina helped, I am going to use Nasarat. Okay? I'm going to use Nasarat for feminine. So if I want to say Muhammad helped, Muhammad is a doer. And what is the default status of a doer? Rafa. Rafa. So that doer will come after it, Muhammad, and it is going to be in its standard status. Nasara Muhammadun. Nasara Muhammadun. Doer is always Rafa and after. Rafa and after. Rafa and after. Okay? In case of feminine, if I'm saying, for example, Maryam, Nasarat, Maryamu. Why not Maryamun? Partially flexible. Partially flexible. Correct. Nasarat Maryamun. यहाँ तक clear है? You talk. These are outside doers. Outside doers का मतलब है कि आप pronoun को replace कर देते हैं उस doer के साथ. Now pronoun is fired. He has no role anymore. Pronoun only tells you जब doer external doer use नहीं होता. When outside doer is used, you are actually getting rid of the pronoun. Okay? The rules are simple. So you must let me write down the rules. You must have Hua or Hiya version of the fail. That's rule number 1. Okay? Hua or Hiya version of the fail. And then you the doer must be after and Rafa. After and Rafa. Doer cannot come before the fail. You cannot say Muhammadun Nasara. The difference between Nasara Muhammadun and Muhammadun Nasara. इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. Muhammadun Nasara. Now the top one is Muhammad help. Nasara Muhammadun is an outside doer. It means Muhammad helped. Muhammadun Nasara is a Jumla Ismiya. It's a Jumla Ismiya. It means Muhammad
comma, he helped. Muhammad, comma, he helped. Okay, so there is a difference. अगर ये जुमला इसमें था फहद, ये क्या ब्रेक इन चेन हो गया फिर? जी जी, ये ब्रेक इन चेन है, लेकिन इसमें इज नहीं लगेगा क्योंकि इज एक्चुअली रिप्लेस हो जाता है फेल से. इंशाल्लाह विल डू दैट लेटर ऑन. ठीक है, हमने अभी तक जो जुमला इसमियास कर रहे हैं उसमें नॉर्मली सारे इसम्स होते हैं, तो हम एक इज लगा देते हैं बीच में. लेकिन जब आप इसम को इंटरप्ले करते हैं फेल के साथ, देन फेल प्लेज ब्रिंग्स द एक्शन इन द सेंटेंस. ठीक है, तो just to make you clear that the doer can never come before the fail. It will always come after the fail, and it is going to be rafa. External doer or outside doer can only be used with either the hua version or hiya version. इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. I want to say for example, Muslims help. Muslims help, not plural, right? So your mind might be saying, I would say, for example, nasaru muslimuna. Nasaru muslimuna. That's how normally your mind might be thinking. But this would mean they helped Muslims. This is what it means. They helped Muslims. But if you want to make Muslimuna outside doer, you have to go back to your fail and make it a hua version. Even if the doer is a plural. Even if when the doer is plural, you're going to say Nasara Muslimuna. That would mean Muslims helped. Is that clear? So the number of the doer, either singular, pair, or plural, does not impact the fact that the fail has to be either who or here. Okay, so for outside doer, the fail always is hua or here. Doesn't matter if the doer is a plural, singular, pair. It doesn't matter. Okay. फात भाई, जी. मोहम्मदुन नसरा, इसमें जी. मोहम्मद ही हेल्प्ड, जी. ही जो है वो किसको रेफर कर रहा है, किसी और को या मोहम्मद को? आप बताएं. Where is the pronoun going back to? So Muhammad he helped. This is आपको इस सेंटेंस के अंदर एक काइंड ऑफ एम्फेसिस फील होगा. जब आप किसी से बात करते हैं कि आपकी कार पंक्चर हो गई है, तलहा ने आके आपकी हेल्प कर दी है, nobody else is helping, you would say Talha he helped, nobody else. Now that he goes back to Talha. ठीक है, right? It's the same scenario. ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? Yes. Very nice. So I want to do this. And I want you to produce some. For example, he created. They both masculine created. खलका. The first one is खलका. khalaqa. Very good. Khalaqa. They both created masculine. खलका. Very good. Khalaqa. ठीक है. यार एक कीबोर्ड बड़ी स्विच है. Ahmad created. नसरा अहमदुन. खलका है, खलकान अहमद। खलका अहमदुन. Very nice. Khalaqa Ahmadun. Very nice. ठीक है. Now I want to say
I want to say यार किसी की तरफ से बहुत फहद, echo है। ये अहमद जो है ये पार्शली फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ये अहमदू होगा, अहमदुन जो है वो Correct, फुली फ्लेक्सिबल नेम तो सिर्फ 4 है ना? correct. Sorry, yes, you're right. मैंने कहना है I'm going to say the two Muslims created. जी। अलका अल मुस्लिमूना नहीं, First thinking process क्या है? Thinking process ये pick up the fail, understand the pick up the fail and then create that fail first. Step number 1 ये है आपका। Created का fail क्या होना चाहिए? मसला खलका खलका। खलका। ठीक है? Now what you have created is he created. That's what you have created, right? He created. Now you are looking at the doer. Who is the doer? The two Muslims. The two Muslims. Muslimani. How should I write the two Muslims? Muslimani. अल मुस्लिमानी, Muslimani. Khalaqal Muslimani. ठीक है? The two Muslims created. लेकिन फहद भाई यहाँ पे हम हुमा वाला वो यूज नहीं करेंगे। नहीं, that's what I'm saying. कि वो शम्स भाई, when you have an outside doer, it doesn't matter what is the number of the outside doer. यहाँ पे जैसे पेयर है, ठीक है? The fail will always be either huma, हुआ or hiya. That's Got it. it. Sorry, I missed Always. that. ठीक है. ठीक है? Got it. Now I want to say the two Muslim women created. जी जनाब। Fail construction. Step number 1. खलका। खला नहीं, खलकता नसलता खलकत। खलकत खलकत, खलकत, right? We are talking about अगर मुस्लिम वुमेन की बात करें तो you might be thinking खलका, because that means, sorry, खलकता, you might be thinking that, right? It means they both created feminine. That's what it means. अब आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया. Now you look at the doer. The doer is the two Muslim women. The two Muslim women. It means you cannot use khalaqata. You have to take it back to khalaqat, because for outside doer it can either be huwa or hiya. Now you have gone to khalaqat, and now we will construct the doer. The two Muslim women. The is al मुस्लिमतानी, muslimatani. Very nice. Khalaqat al muslimatani. Khalaqatil muslimatani. जब आप अरबिक में पढ़ते हैं इसको, because when there is a sukoon and there is an alif after it, you will many times find this replaced with a kasra. Khalaqatil muslimatani. Okay, but it doesn't mean it's khalaqati. Khalaqati कुछ नहीं है आपके चार्ट में. Khalaqti है, where there is a sukoon on the kaf. खलकती कुछ नहीं है. और ये जो ती आता है इन द एंड, ये बेसिकली उस तजवीद की रीजंस की वजह से आता है, प्रोनाउंसिएशन की वजह से, राइट? बट एक्चुअली इट इज खलकत अल मुस्लिमतानी. क्लियर? यस, ठीक हो गया. चले, तो आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर इंशाल्लाह, अदरवाइज ओवरलोड हो जाएंगे. पिछली भी क्लास लेके आ रहे हैं आप लोग. तो जस्ट साथ ही सिर्फ एक चीज के तलहा भाई ने जो आपने अभी पिछला वो आप हमें शो कर रहे थे एग्जांपल्स अभी ये वाली, तलहा भाई आपने कहा कि अहमदू जो है वो सेमी फ्लेक्सिबल है इसलिए कि सिर्फ 4 नाम जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है. तो वो 4 अरब नाम है नबियों के. यहाँ पे अहमदू इसलिए है कि इट्स मोर देन 3 वर्ड्स. सही बात कह रहा हूँ मैं फहद भाई? तलहा ने जिस पर्सपेक्टिव से कहा है कि कुरान में सिर्फ 4 नेम्स आर फुली फ्लेक्सिबल. हाँ जी, ठीक है. तो दिस नेम, if it is because this name is not among those 4 names, इसलिए तलहा ने कहा कि ये partially flexible है. But you are also right, it's a letter with 4 letters, it's a word with 4 letters. ठीक है. और एक्चुअली ये लेटर इस ये पर्टिकुलर लफ्ज है जिसको कहते हैं इसम तफदील. इट्स अ कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव्स आर ऑलवेज partly flexible.
हमने माजी में कुछ एग्जांपल्स की थी, जैसे अकबरू देखा था हमने, ग्रेटर, ग्रेट, ग्रेटर, उसको हम डिटेल में करेंगे। बट यस, यू आर आल्सो राइट शम्स भाई, देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट लाइक दैट, लेकिन तला का पर्सपेक्टिव वो 4 नामों से कंपेयर सही करना। है, ठीक है। समझो यहाँ पर वो भी मेरे जहन में था, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड जिसमें 3 अल्फाबेट्स पे जो जो 3 वर्ड्स को जो मिला के जो बना होता है और बीच में अगर जज़म आ जाए तो वो जो है वो फुली फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा था उस वक्त लेक्चर में। जिस तरह मक्का तू, जिस तरह मक्का जो है वो एक 4 वर्ड्स बन जाता है, 2 काफ आ जाते हैं बीच में। इसी तरह अदनुन जो है ना, मुझे वो वर्ड याद है, अदनुन, अदनन, अदनिन। जो अदनुन है ये ईडन, ये एक जगह का नाम है ना फाद? जी जी, गार्डन ऑफ ईडन जिसको कहते हैं। गार्डन ऑफ ईडन जो था। अच्छा, तो अब आप वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। आता है ये क्वेश्चन था। जी जी बताएं। ये जो ऊपर एग्जांपल है इसमें हम अगर ये लिखते हैं 2 मुस्लिम्स क्रिएटेड, खलका अल मुस्लिमानी, तो वो उसका मतलब फिर वो हो जाएगा द 2 मुस्लिम्स दे क्रिएटेड। वो एम्फेसिस वाला टू होता है मुस्लिम्स, जी, 2 मुस्लिम्स दे क्रिएटेड, दे बोथ क्रिएटेड। नहीं सॉरी, नहीं, मैं लिखता हूँ उसको यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना, लेट्स राइट इट डाउन। आप कह रहे हैं कि खलका लिखा जाए पहले जी, और अल मुस्लिमानी जी, एंड देन अल मुस्लिमानी जी। तो ये बन जाएगा नसरा। खलका मींस दे बोथ क्रिएटेड, मुस्लिमानी द 2 मुस्लिम्स, इट अच्छा, मींस they दे had बोथ the two क्रिएटेड द Muslims. 2 मुस्लिम्स। ठीक है, क्योंकि अगर शुरू में लगाओगे तो एम्फेसिस वाला बनेगा। बेसिकली ये एक रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है सिमेंटिकली भी, लेकिन जब आप इस तरह यूज करते हैं ना तो इट वोंट रिमेन मुस्लिमानी एनीमोर, इट वुड एक्चुअली बिकम नसब, इट विल बिकम मुस्लिमैनी, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लाइक दिस। इसका मतलब होगा दे बोथ क्रिएटेड द 2 मुस्लिम्स। जो ये कंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी की है, दिस एक्चुअली अ रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब फेल आता है ना तो फेल के आगे इस तरह रफा नहीं आता इसम, अनलेस इट्स अ डूअर। ठीक है, तो रफा आने की रीजंस कुछ और हो सकती हैं कि या तो ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कुछ, बट इन अरेबिक नॉर्मली यू वोंट राइट लाइक दिस। इफ यू वांट टू से दे बोथ क्रिएटेड द 2 मुस्लिम्स, then this muslimani would be actually muslimaini, नसब होगा ये इंशाल्लाह बाद लेकिन में। उसमें जो हेल्प में हमने यही नहीं किया था, नसरु मुस्लिमूना, दे हेल्प द मुस्लिम्स, उसमें तो वही यूज किया था कि नहीं? नसरु मुस्लिमूना, नसरु मुस्लिमूना अगर यूज करें, ये किया था नसरा मुस्लिमूना। इसका तो मतलब होगा ना मुस्लिम्स हेल्प्ड, जी। लेकिन अगर हमने कहना हो दे हेल्प द मुस्लिम्स तो फिर उसमें यही होगा नसरु जी, मुस्लिमूना। दे, अगर आपने कहना हो दे हेल्प्ड द मुस्लिम्स, दैट वुड बी, वो भी आपने किया हुआ नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। आप कहेंगे नसरू, दे हेल्प्ड, और आपने कहना है मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स इस केस के अंदर रफा नहीं होगा, इन द करेक्ट अरेबिक मुस्लिमूना नहीं होगा, वो मुस्लिमीना होगा, नसब होगा। ठीक है, विच वी विल डू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, इट मीन इसका मतलब होगा दे ऑल हेल्प्ड द मुस्लिम्स। ठीक है, यानी वो फिर इजी है ये अंडरस्टैंड करना कि आपका ये सेंटेंस बनता ही नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर। जी जी, कंफ्यूजन ही नहीं रह जाती कि आप अगर होगा तो वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी फिर। जी जी जी, ठीक है। दिस इज समथिंग कॉल्ड मफऊल, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, मैं आपको करूंगा ये कि इंशाल्लाह आई विल सेंड यू फ्यू सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जैसे हम कर रहे थे, ये ही क्रिएटेड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वुड वांट यू टू प्लीज send me back the Arabic of that. I might also send you the Arabic, asking you to send me back the English. ठीक है, ओवर द वीक हम ये एक्सरसाइज थोड़ी बहुत चलाएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले ये चीज सुपर कंफर्टेबल हो जाए हमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे करते हैं काम। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।